A very good afternoon to all. Okay, good evening. A very good evening to all. How are you? I am fit and fine, beta. Then now we should start today's class. I am fit and fine. है ना? In previous lecture, I already completed the magnetism and matter, but a small instrument was left. So I am just taking that particular instrument in 10 to 15 minutes. After that, I will start the new chapter, that is electromagnetic induction. Okay. So first of all, I am not going too much into it because you cannot you cannot expect a direct question from this topic. Okay. There will be some numericals which can be asked. So I am just explaining the principle on which the instrument will work and the formulas by which you can easily solve the questions based on this magnetometer. I hope the thing is clear. मैं बोल रहा हूँ बेटा कि हम लोग एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ना छोड़ चुके थे. रीजन ये है कि अब जो है आपके लेवल 1 में नहीं है, आपके लेवल 2 में डाला हुआ है. तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. वी वांट टू लर्न समथिंग अबाउट इट. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लेगा. हम लोग 15-20 मिनट इसे पढ़ लेते हैं. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. है ना? Good evening, sir. Please tell what you have written on the top. It's magnetometer. It is magnetometer. है ना? तो start किया जाए बेटा. So now I am starting this chapter, this topic beta. Try to understand. Have you explained it? No बेटा, अभी just मैंने लिखा है, अभी कुछ भी explain नहीं किया मैंने. I'm just starting. तो actually हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा. We are going to study a instrument that is known as magnetometer. इस मैग्नेटोमीटर का दो काम है बेसिकली. द फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ बी, एंड द सेकंड वन टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट. इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन इट इज आल्सो यूजफुल. तो वी हैव टू वर्क फॉर दिस मैग्नेटोमीटर. पहला, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है. दूसरा, ये आसानी से बेटा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकता है. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट. There are two type of magnetometer which can be used. अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो there are two type of magnetometer जो कि हमारा यूज होता है. The first one is known as vibration magnetometer and the second one is known as deflection magnetometer. तो ये दो है बेटा और दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग है ना. We already studied one principle that if you put a magnet inside a uniform magnetic field, then let us assume कि आपने उसको कहाँ रखा है बेटा, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है. तो if you displaces that particular magnet, it will oscillate and you can easily find the time period of the oscillation. I hope the thing is clear. है ना? बस बेटा अभी स्टार्ट किया है मैंने, है ना? एग्जैक्टली बेटा, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा and it will oscillate. So here the formula which is used is called T is equal to 2 pi root under I divided by M multiplied by BH. Okay, here I am writing this T is nothing but time period. This one is basically time period. BH is horizontal magnetic field, Earth's horizontal magnetic field. Good evening beta. No beta, just one topic was left in the previous chapter. I am just taking that particular topic. Okay, Earth's horizontal magnetic field. Magnetic field, and this I and M is basically I is moment of inertia
This one is moment of inertia. And here I will write this BH is nothing but, sorry, BH तो already I already explained this BH. This M is nothing but magnetic dipole moment. Exactly, beta. It is magnetic moment. So these are the four parameters which is basically used. अब ये दिखता कैसा है, यूज कैसे आता है, इसको बताता हूँ. वी हैव अ बॉक्स वाई बी एच. जस्ट बेटा अगर वेट कर लोगे तो समझ जाओगे. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, है ना. सो नीड नॉट टू वरी, आई विल एक्सप्लेन इट. 2 मिनट बस रुक जाओ, है ना. वी हैव अ अरेंजमेंट, वी हैव अ बॉक्स, एंड इन दैट बॉक्स हम लोग एक सिंपल सा प्लेट लगा के रखते हैं बेटा. प्लेट मीन्स आप ऐसा मान लो कि यू हैव अ सिंपल मैग्नेटिक निडल, है ना. मैग्नेटिक निडल इज रिस्ट्रिक्टेड. It cannot float in the vertical direction. It can only float in the horizontal direction. That's why we are considering only BH. We are not interested in B or BV. Okay, I think the first question is clear. आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा ये क्लियर हो गया होगा. अपूर्वा एंड Ahavritak. It is okay बेटा. Now come to the second point. The second point is आप क्या करते हो, you are just taking the first magnet, you are just taking the first bar magnet and placed at that particular plate. It will oscillate, calculate its time period. Now you can easily find the same value for the second magnet also. If you want to find the ratio of M1 and M2, directly take the ratio of T1 by T2, you will directly get your result. बट अगर बेटा किसी केस में मुझे क्या करना है, फील्ड निकाल कर देखना है, तो फॉर फाइंडिंग ऑफ फील्ड वी हैव टू डू अ सिंपल अदर कैलकुलेशन ऑल्सो. वहां मुझे क्या करना होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही उस मैग्नेट को प्लेस कर देना होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहे. और ये जो हमने यहाँ पे बेटा टेस्ट मैग्नेट रखा है, इस टेस्ट मैग्नेट को हम उसमें ऑसिलेट कराएंगे. इन दैट केस we will get T is equal to 2 pi root under I by M into BH plus B1. वो जो नया मैग्नेट आपने रखा है बेटा उसके कारण भी वहां फील्ड आएगा जिसको आप वहां पे B1 बोलोगे. एंड विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड यू कैन इजीली गेट द एक्चुअल आंसर, है ना. तो है बेसिकली प्रिंसिपल आपका यही बेटा. T is equal to, ओके आप इमेजिन नहीं कर पाए, ओके बेटा जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना. मैंने आपको बोला कि लेट अस अज्यूम वी हैव अ बॉक्स. लेट अस अज्यूम, जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम शोइंग यू समथिंग. लेट अस अज्यूम वी हैव अ बॉक्स, दिस टाइप ऑफ बॉक्स, है ना. हियर वी हैव अ सिंपल टॉर्सन हेड लाइक दिस. इस बॉक्स के अंदर क्या है, नीचे हमने बोला है बेटा इन द बॉटम मोस्ट पार्ट देयर इज अ प्लेट. ऐसे मैंने एक प्लेट रख रखा है और इस प्लेट में मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को यूं प्लेस कर दिया, ठीक है ना. बॉक्स था, बॉक्स में प्लेट है, हमने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया. और ये जो प्लेट है बेटा मैंने बोला कि ये ऊपर में एक टॉर्सन हेड है. मतलब मीनिंग क्या है बेटा, इसमें जस्ट क्या है, एक और ऊपर नॉर्मल सा इस तरह का एक अरेंजमेंट लगा हुआ है जिससे हम इसको फिक्स कर दिए. हम इसको क्या कर दिए, बीच में यूं बांध दिए कि ये राइट या लेफ्ट आगे पीछे ना खिसक जाए, है ना. मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया. तो अगर मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, मान लो ये पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, मैं इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, है ना. यूं ऑसिलेट करेगा. तो ये जब ऑसिलेट करेगा तो क्या आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, यू कैन इजीली फाइंड इट्स टाइम पीरियड. तो हम इसके टाइम पीरियड को निकाल रहे हैं and we are just comparing the time period to get the value of to get the ratio of M1 and M2. I think now the point is clear, है ना. Simply I am just taking you to the second part. देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, I am not taking you too much into it. बहुत ज्यादा अंदर ले जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन है आपके पैकेज में, वो जितना इंफॉर्मेशन मैंने दिया इससे हो जाएंगे.
और इसके कंस्ट्रक्शन ये सब तो बोर्ड में पहले पूछा जाता था। अब ये बोर्ड में है ही नहीं तो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना है इट इज मोर देन सफिशिएंट। एज वी पुट मैग्नेट इन, बेटा अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रखोगे तो फिर ऑसिलेट कैसे कराओगे, है ना। ऑसिलेशन तो तभी होगा ना व्हेन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी वी विल नॉट गेट द ऑसिलेशन। तो उसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, वी आर यूजिंग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर यूजुअली वी टेक द हेल्प ऑफ टेंजेंट लॉ। हियर हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, टेंजेंट लॉ का यूज करते हैं। एंड हाउ, तो इस बार है क्या हमारे पास एक घड़ी की डायल जैसा अरेंजमेंट होता है। वी हैव अ अरेंजमेंट लाइक अ डायल ऑफ अ, जस्ट बेटा मैं इसे दूसरे पेज में दिखा देता हूँ। हियर काफी कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट इनटू द नेक्स्ट पेज, है ना। तो मैं यहाँ पे बता रहा था बेटा आपको क्या, सेकंड बता रहा था आपको दूसरे टाइप का गैल्वेनोमीटर, दैट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ओके, तो मैं इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। In this deflection magnetometer we have two type of arrangement. नो प्रॉब्लम बेटा, अभी मैंने शुरू ही किया अभी तो, है ना। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में हम लोग किसको यूज करते हैं, किस कॉन्सेप्ट को, टेंजेंट लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इट मींस वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड्स, वन ड्यू टू BH means Earth's magnetic field, and the second one due to the magnet for which you are just interested to find M or B, है ना। दूसरा जो है बेटा वो मैग्नेट है हमारे पास। तो मैं आपको जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, अंशिका जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा। तो वी हैव अ डायल टाइप अरेंजमेंट, घड़ी की डायल होती है ना, तो घड़ी की डायल टाइप का अरेंजमेंट है आपके पास। ये आपका मैग्नेटोमीटर है। हियर वी हैव टू टाइप ऑफ थिंग्स, हमारे पास दो तरह की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। पहला, हम जानते हैं बेटा BH हमारा हमेशा यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ BH। एंड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वी आर टेकिंग अ मैग्नेट हियर लाइक दिस, इट्स साउथ पोल इज हियर, इट्स नॉर्थ पोल इज हियर। तो क्या इसके कारण हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ आ जाएगा। एंड नाउ वी हैव अ मैग्नेटिक निडल, we have a magnetic needle, it will make some angle theta here. So आप आराम से क्या लिख सकते हो बेटा, you can write this tan theta is equal to B divided by BH, and this B is the magnetic field due to this external magnet, and the position is axial position. So I will write this B is nothing but, इस B की वैल्यू और कुछ नहीं है, यह हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई DQ के बराबर है। जहां पे DQ की बात करें बेटा तो D हमारा यहां से डिस्टेंस है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस, क्या हम आराम से ये काम कर सकते हैं, हमारे पास नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, हमारे पास BH पहले से है, हमने B प्रोड्यूस कर लिया। कैसे प्रोड्यूस किया बेटा, सर tan थीटा इज इक्वल टू BH बाई B, सर tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा आप गलत लिख रहे हो, आप लगता है भूल गए हो फॉर्मूले को। फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा होगा बेटा, आई थिंक, है ना। फॉर्मूला आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू बेटा, है ना, पहले ही ये सिखा रखा है। बेटा पीछे का पढ़ा करो थोड़ा सा प्लीज बेटा, अदरवाइज आगे परेशानी होती रहेगी, है ना। चलो, तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आराम से बेटा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेंगे, है ना। हम हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेंगे जो कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है। बी हम लोग यहाँ पे मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, वो उसके एक्सियल पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली राइट tan थीटा इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय BH।
and we can get our answer. ये जो पोजीशन है बेटा, जब आप एक्सियल पोजीशन पे इसे रखते हो मैग्नेट को, तो ऐसे पोजीशन को, डायल के इस पोजीशन को हम लोग tan A पोजीशन के नाम से जानते हैं. क्या नाम देते हैं हम लोग? tan A पोजीशन का. तो ज्यादा इसका कोई ऐसे ऐसे बहुत टेंशन लेने वाली बात ये है नहीं. तो सिंपल सा बस ये याद रखना है कि ये क्या है, ये हमारा tan A पोजीशन है व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेट इज प्लेस्ड एट द एक्सियल पोजीशन, है ना? Actually beta, I am explaining magnetometer. There are two type of magnetometers. तो एक हो चुका है, दूसरा जो tangent law के principle पे work करता है, I am just explaining it. And beta, please, it's my humble request, try to connect at a time, otherwise आप समझते हो 5-10 मिनट पीछे जाना और फिर से सारी चीजें बताना, वो तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था. इफ इट विल स्टार्ट, आप समझो, अगर वो स्टार्ट हो गया रहता तो हमें बहुत नुकसान हो जाता है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ट्राई टू कनेक्ट एट टाइम. आप अगर 10 मिनट पहले कनेक्ट कर लोगे, 10 मिनट पहले आप बैठ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आप 10 मिनट पहले से प्रिपेयर हो जाओ, है ना? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगली बार से. ओके, तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द सेकेंड पोजिशन. हमारे पास क्या है इस बार? फिर से डायल है. वी हैव द सेम डायल, बट दिस टाइम I just changed the position. मैंने इस बार जस्ट पोजीशन को चेंज कर दिया बेटा. Again what will happen here? This is the direction of BH. ये हमारे पास डायरेक्शन है BH का बेटा, और यहाँ मैं मैग्नेट इस तरह से रखूंगा. This one is the south pole, this one is the north pole. So this point is equatorial position, and at equatorial position the magnetic field is like this. So अगर आप यहाँ पे बेटा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक निडल प्लेस करते हो, इट विल प्लेस लाइक दिस, और इसका इक्विलिब्रियम हमारे इस थीटा एंगल पे आएगा. एंड दिस टाइम अगेन यू विल राइट दिस tan थीटा इज इक्वल टू B divided by BH, but this time this B is nothing but mu naught I divided by mu naught by 4 pi multiplied by M divided by dq. I hope the thing is clear. Why BH 2 times? अच्छा, मैंने दोबारा BH लिख दिया. No problem बेटा. Just changing this one. Okay. I hope the thing is clear. ये जो दूसरा पोजीशन है, इसे हम लोग और कुछ नहीं कहते, इसे हम लोग सिंपल सा नेम देते हैं बेटा. इट इज नोन एज tan B पोजीशन. पहला वाला क्या था? tan A. दूसरा है मेरे पास tan B पोजीशन. तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं तो tan B पोजीशन, जब एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं तो tan A पोजीशन. तो कोई आपसे पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना? इफ समवन आस्क टू यू देन यू कैन इजीली एक्सप्लेन. और अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन दिख जाए तो हमें घबराना नहीं है. वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू डू आवर क्वेश्चन, है ना? क्या सभी लोगों के दिमाग में ये बात नाउ क्रिस्टल क्लियर हो गई है? तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स थे. आई एम जस्ट रिवाइजिंग फॉर दोज हुम जिसने लेट से क्लास ज्वाइन किया है बेटा, मैं उनके लिए शुरू से एक बार जल्दी से बता देता हूँ. हम लोग यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे थे जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर. इट इज बेसिकली यूज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट. दो तरह के प्रिंसिपल पे हम लोग इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर. द सेकेंड वन इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. हमारा जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है ये हमारे टाइम पीरियड मींस ऑसिलेशन प्रिंसिपल पे काम करता है. यू आर पुटिंग अ मैग्नेट इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इनिशियली ये वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेट करने के कारण बेटा इससे कुछ टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो. उस टाइम पीरियड के हेल्प से यू कैन इजीली गेट योर आंसर. एंड द सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रिंसिपल जो कि हमारा टेंजेंट लॉ का है. In tangent law we can easily write tan theta is equal to B divided by BH. इस प्रिंसिपल से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हम एक मैग्नेटिक डायल यूज करते हैं. ये जो मैग्नेटिक डायल है हमारा, इस मैग्नेटिक डायल में अगर हम मैग्नेट को एक्सियल पोजीशन पे यूं प्लेस करते हैं तो इट इज नोन एज tan A पोजीशन. मतलब वो ऐसा आपको बोलेंगे नहीं कि यू आर प्लेसिंग द मैग्नेट इन द एक्सियल पोजीशन. दे विल टेल यू दैट you have to use a tan A position. मतलब आपको
डायल को इस तरह से प्लेस करना है कि जहां जो बी प्रोड्यूस हो रहा हो वो बी एक्सियल हो हमारा, और दूसरे में बेटा tan बी पोजीशन है, हियर द मैग्नेट इज प्लेस्ड बेसिकली इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, जिससे आप उसके इक्वेटोरियल पोजीशन वाले मैग्नेटिक फील्ड को आप यूज में लेकर आ सको, है ना। तो यहाँ पे tan बी में, हाँ एग्जैक्टली बेटा, फर्स्ट वन इज द एक्सियल वन, द सेकंड वन इज द ब्रॉड साइडेड, है ना। तो यू कैन इजीली यूज दीज टू कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व योर क्वेश्चन। डन। घड़ी बेटा, ये जो मैग्नेटिक डायल दिख रहा है, ये देखो डायल नहीं है, दोनों साइड बेल्ट है, बीच में क्या है, घड़ी वाला बीच वाला पोर्शन, है ना। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायल। आई होप द थिंग इज क्लियर। डन। नो बेटा, फिर आप गलत समझ रहे हो, आप गलत पॉइंट पे चले गए। हम लोग इसको मैग्नेटिक मोमेंट यूज निकालने के लिए यूज में लेकर आएंगे। अब मान लो मेरे पास बेटा फॉर्मूला ये आ गया है, मैं पहले मैग्नेट को रखूंगा तो थीटा की कुछ अलग वैल्यू आएगी, दूसरा मैग्नेट रखूंगा तो थीटा की दूसरी वैल्यू आएगी। तो आई कैन इजिली राइट tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। ऐसे ही बेटा मैं चाहूं तो डिस्टेंस को वेरी करके भी चेक कर सकता हूं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हुआ जिसके हेल्प से आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड और m को कंपेयर कर सकते हो। अगर दो मैग्नेट्स के बीच में आपको कंपेयर करना है, यू कैन इजिली कंपेयर दैट। मान लो पहले मैग्नेट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो थीटा 30 डिग्री आया, दूसरे को प्लेस किया तो थीटा 60 डिग्री आया। नाउ आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 by b2 और m1 by m2 विद द हेल्प ऑफ दैट। आई होप द थिंग इज क्लियर नाउ, है ना। तो अब मैं यहां से बेटा आपको आगे लेकर चलता हूं। हाँ एग्जैक्टली बेटा, यहाँ हम डिफ्लेक्शन करा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटोमीटर, एंड इन फर्स्ट केस वी आर जस्ट ऑसिलेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर। ओके, तो यहीं इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। एक्चुअली बेटा देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर पैकेज व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि आप बाद में फिर मुझे से पूछोगे, है ना, बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैं इसका आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। बट नाउ बेटा क्वेश्चन इससे पूछा जाए, इट मुझे ऐसा बहुत कम संभावना लगता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का देख लेंगे इसको, बस ये दिमाग में रहे कि चीजें दिमाग में चलती रहे, है ना। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, आराम से समझ में आएगा, ध्यान से बस हमें देखते हुए चलना है एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। तो आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। The name of the new chapter is electromagnetic induction.